प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। What is a Wheatstone bridge? It forms the basis of most of the instruments to find out unknown resistance. Why the name Wheatstone Bridge? It was popularized by Sir Charles Wheatstone. Of course, it was invented by Samuel Hunter Christie, but after its invention, after 10 years of its invention, it was popularized by Sir Charles Wheatstone, and hence the name Wheatstone Bridge. It consists of 4 resistances P, Q, R and S connected in the form of a bridge. A cell of EMF E is connected across the ends A and C through a key K1. A galvanometer of resistance G is connected between B and D through key K2. Out of these 4 resistances P, Q, R and S, S is unknown, whose value is to be determined. Now, current I flows through this circuit. At point A, I divides itself into 2 branches, one through P and another through R. Current I1 flows through P. So, the rest of the current I minus I1 flows through R. Here at B, again the current I1 divides itself into 2 branches. Current IG flows through galvanometer of resistance G. G is a subscript here. The rest of the current I1 minus IG, it flows through Q. Now here at point D, current IG and current I minus I1, the two combine. What will be the net current through DC, through resistance S? It will be I minus I1 plus IG. Again at point C, current I1 minus IG and current I minus I1 plus IG, they combine to form current I. So now we know that current through resistance P is I1. Current through resistance Q is I1 minus IG. Through R it is I minus I1, and through S it is I minus I1 plus IG. अब ये करंट्स फ्लो करते हैं कब? जब हम बैटरी की K1 को प्रेस करते हैं, क्लोज करते हैं पहले, और फिर K2 को क्लोज करते हैं, तो ये करंट्स फ्लो करेंगे। S को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है? पहले हम बैटरी की K1 को क्लोज करते हैं और फिर K2 को क्लोज करके हम एडजस्ट करते हैं P, Q और R को, सो दैट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0। ये कैसे पता लगेगा? डिफ्लेक्शन से। अगर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दे तो इट मीन्स करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0। अब इस ब्रांच में से 0 करंट का मतलब हुआ, करंट 0 कब होता है? जब पोटेंशियल्स सेम हो। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और अगर पोटेंशियल सेम है, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, उस केस में करंट इस ब्रांच में से 0 हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देगा। अब अगर ये की भी ओपन है, ये भी ओपन है, उस केस में भी गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देगा, क्योंकि उस केस में तो बिल्कुल करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है। तो हमने क्या करना है? K1 को क्लोज करके फिर K2 को क्लोज करेंगे, ताकि यहाँ करंट आई हो, फिर डिफरेंट ब्रांचेस में से करंट हो, और ये आई चीज जो है वो 0 हो जाए। उस केस में
पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D। मीन्स कि ये दो रेजिस्टेंसेस P और Q उस वक्त सीरीज में हो जाएंगे जिनमें से करंट फ्लो करेगा I, और ये दोनों R और S भी सीरीज में होंगे। I माइनस I1 करंट फ्लो करेगा इस ब्रांच में से। उस केस में क्या होगा कि इस सारे का इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं है। अब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और ये कॉम्बिनेशंस जो हैं वो पैरेलल में होंगे दोनों। उस केस में जब इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं है, जब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि ब्रिज इज बैलेंस्ड। एंड व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, और व्हेन on closing the battery key first and then galvanometer key 2, if galvanometer shows zero deflection, the bridge is said to be balanced, and the condition for balance is that resistance P divided by resistance Q must be equal to resistance R divided by S, or we can write P divided by R equal to Q divided by S. Means this resistance divided by this resistance equal to this over this, or this over this equal to this over this. अब यहाँ से हम S फाइंड आउट कर सकते हैं। S is equal to Q into R divided by P if these resistances are known. चलिए ये कंडीशन डिराइव करते हैं यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वो हम लगाएंगे लूप ए बी डी ए को और लूप बी सी डी बी को। चलिए पहले लगाते हैं लूप ए बी डी ए को हम लूप ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने लूप ड्रॉ कर ली। अब इस लूप में हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। रेजिस्टेंस P, करंट थ्रू P I1, प्रोडक्ट हो गया I1 इंटू P। आगे देखिए कि हम इस तरफ ट्रेवल कर रहे हैं जहाँ पर कि रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का G, करंट है IG, प्रोडक्ट हो गया IG इंटू G। पॉजिटिव होगा ये प्रोडक्ट बिकॉज वी आर ट्रेवर्सिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आगे चलिए, रेजिस्टेंस R एंड करंट I माइनस I1, प्रोडक्ट हो गया I माइनस I1 इंटू R। अब ये प्रोडक्ट जो है नेगेटिव होगा बिकॉज वी आर ट्रेवर्सिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। This must be equal to 0 because there is no cell in this closed circuit ABDA. अब हम लगाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू क्लोज्ड सर्किट BCDB। यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। अभी इस लूप में देखें कि करंट है I1 माइनस IG जो फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस Q में से। प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस क्या हो गया I1 माइनस IG इंटू Q। ये प्रोडक्ट पॉजिटिव बिकॉज वी आर ट्रेवर्सिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आगे देखिए कि रेजिस्टेंस S में से हम ट्रेवर्स कर रहे हैं अपोजिट टू दिस करंट, सो प्रोडक्ट हो गया नेगेटिव माइनस I1 प्लस IG, ये करंट इंटू रेजिस्टेंस S, ये प्रोडक्ट नेगेटिव। अब आगे देखिए यहाँ से हम ट्रेवर्स कर रहे हैं अगेन अपोजिट टू करंट IG, प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया माइनस IG इंटू G। दिस ऑल्सो इक्वल टू 0 क्योंकि कोई EMF, कोई सेल इस क्लोज्ड सर्किट में भी नहीं है। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं।
जैसा कि मैंने पहले कहा, हम एडजस्ट करेंगे पी, क्यू और आर को सो दैट देर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, नो करंट थ्रू दिस ब्रांच बी डी. Means Ig should be 0. Means in case when this Wheatstone bridge is balanced, in that case Ig is equal to 0. Let us substitute Ig is equal to 0 in this equation and in this equation. Equation 1 will become I1 into P plus Ig is 0. ये नहीं लिखेंगे, आगे आपके पास आ जाएगा या प्लस 0 माइनस I1 इंटू आर इक्वल टू 0. तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई I1 इंटू पी इक्वल टू, इसको उधर जाके पॉजिटिव लिख लेंगे, I-1 इंटू आर. इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं. अब इक्वेशन 2 में हम Ij को 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, Ij 0 हो गया, इसको नहीं लिखेंगे, इंटू क्यू माइनस I-1, Ig 0 हो गया, इंटू एस माइनस ये टर्म नहीं आएगी क्योंकि Ig 0. सो दिस इज इक्वल टू 0 and I1 इंटू क्यू इक्वल टू, ये माइनस इधर जाके I माइनस I1 इंटू एस. इसको हम इक्वेशन 4 लिख लेते हैं. इक्वेशन 3 और 4 को हम डिवाइड कर देंगे. डिवाइड जब करेंगे तो ये साइड I1 इंटू पी डिवाइडेड बाय I1 इंटू क्यू इस साइड पे इक्वल टू, इस साइड पे क्या आएगा, I माइनस I1 इंटू आर. इसको लिखा डिवाइडेड बाय, इसको लिखा I माइनस I1 इंटू एस. तो हमारे पास ये I1 कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म ये कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास कंडीशन आ गई P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर S. तो हमने ये प्रूव कर दिया कि दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड ब्रिज. This is also called the principle of Wheatstone bridge. So यहाँ से हम वैल्यू S की फाइंड आउट कर सकते हैं knowing the values of P, Q and R. एक और एप्लीकेशन है इसकी जिसमें कि हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. यहाँ गैल्वेनोमीटर को, इस रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का मान लीजिए रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ की बजाय इसको S की जगह लगा देते हैं. इस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर को यहाँ लगा देंगे और यहाँ पर अब देखिए कि यहाँ से करंट I और इस ब्रांच में P में करंट I1 फ्लो करेगा, इधर I माइनस I1 फ्लो करेगा. अब यहाँ से जब ये की क्लोज होगी और इसको क्लोज करेंगे तो ये करंट I0 फ्लो करेगा. तो यहाँ पे आगे कंबाइन हो जाएगा करंट I माइनस I1 यहाँ से और I0 यहाँ से, और इधर इस ब्रांच में से उसी तरह से I1 माइनस I0 क्योंकि इधर करंट I0 गया. तो यहाँ हम क्या करते हैं, पहले हम इस की को K1 को क्लोज कर लेते हैं, K2 को ओपन रखते हैं. K2 ओपन मीन्स ये I0 जो है वो 0 हो जाएगा इनिशियली. I0 के 0 होने से क्या होगा कि यहाँ पर करंट I1 फ्लो करेगा, Q में से भी, यहाँ से भी I1, इधर भी I1 और इधर I माइनस I1, और इधर कितना करंट फ्लो करेगा, I0 0 है तो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर I माइनस I1. तो यहाँ गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन देगा. मान लीजिए कि डिफ्लेक्शन है n से n इज इक्वल टू 15. 0 से 30 तक गैल्वेनोमीटर में दोनों साइड पर डिफ्लेक्शंस होती हैं. स्केल 0 to 30, एक तरफ सेंटर में 0 होता है, आप जानते हैं. सो से n इज द डिफ्लेक्शन. इस डिफ्लेक्शन ये डिफ्लेक्शन क्यों आए, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I माइनस I1. अब हम क्या करेंगे कि K2 को क्लोज कर देंगे और फिर P, Q और R को एडजस्ट करेंगे सो दैट डिफ्लेक्शन इज अगेन n
इक्वल टू 15 सेम डिफ्लेक्शन आ जाए। अब ये कैसे हुआ? सेम डिफ्लेक्शन कब होगी? जब आई नॉट 0 हो जाए या इस ब्रांच में से कोई करंट फ्लो ना करे, मीन्स द ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो हमने क्या किया? पी क्यू और आर को एडजस्ट किया सो दैट द ब्रिज बिकम्स बैलेंस्ड, नो करंट थ्रू दिस ब्रांच एंड गैल्वेनोमीटर अगेन गिव्स द सेम डिफ्लेक्शन एन। अब इस केस में क्योंकि ब्रिज बैलेंस्ड है, हम लगा सकते हैं ये इक्वेशन P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर इस केस में G, और यहाँ से हम G फाइंड आउट कर सकते हैं। G इज इक्वल टू Q इंटू R ओवर P। तो इस तरह से हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड एज केल्विन्स मेथड to find out resistance of galvanometer। अब क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये थियोरेटिकल है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मीटर ब्रिज, एक्चुअली उस एप्लीकेशन से मीटर ब्रिज से हम फाइंड आउट करते हैं अननोन रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। मीटर ब्रिज के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो बच्चों आई एम श्योर कि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर S या R ओवर G, ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।